Hello student, welcome once again in our mathematics session, standard 8, chapter number 5, data handling. Students, here this lesson name showing us two word data handling. In 7th standard we already completed the definition of data and related data handling, so many things. Now furthermore we can discuss here in this lesson, see what is given us. Looking for introduction. In your day-to-day life, you might have come across information such as 1. Runs made by a batsman in the last 10 test matches. Number of wickets taken by a bowler in the last 10 ODIs. Marks scored by the students of your class in the mathematics unit test. Number of storybooks read by each of your friends, etc. The information collected in all such cases is called a data. So definition of data is here. Data is a information. And there were two types, primary and secondary. Primary means what we collected ourselves directly, say primary data. The information we are using from another one. Yes, newspaper, somebody gives their some message, that are the secondary data. Good. So here you had the clear idea regarding the data. Sometimes data is represented by graphically to give a clear idea of what represents. We are knowing a picture is showing more than 100 words or 1000 words. Here I want to show you one pictograph which gives you a clear idea about the pictures. July, August, September, 3 months are written. There in front of there some cars pictures are given. July month 2 car and 1 half car. August 3 cars. September 4 cars. And on the top line given 1 car showing 100 cars symbolically represent. So you get the idea. July month 250 cars denoted. In 3, 300 and 4, 400. Can I ask some question regarding this one? Why not? How many cars are produced in the month of the July? आपको पता होगा 250 cars. In which month were maximum number of cars produced? पिक्चर से पता चल गया बेटा. सितंबर में सबसे ज्यादा 400 कार्स आपने प्रोड्यूस की है. कोई भी फैक्ट्री का एग्जांपल है. ओके, वेरी नाइस. बार ग्राफ, यू आर नोइंग वेरी वेल. बार ग्राफ का मतलब क्या है? यू हैव द बार ग्राफ पिक्चर हियर ऑन योर स्क्रीन. A display of information using bars of uniform width, their heights being proportional to the respective value. जो गैप है वो बराबर है सबका, बट उसका हाइट छोटा बड़ा है, कोई बड़ा कोई छोटा. रिस्पेक्टिव दैट प्रोपोर्शनल जो होगा उसके हिसाब से होगा. इधर हमारा ग्राफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 8 इन द ईयर 2003 में कितना था, 3 4 में, 4 5 में कितना, 5 6 6 7 और 7 8 में कितना है. तो पिक्चर से पता चलता है सबसे ज्यादा 7 8 में स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट है, मोर देन 350 स्टूडेंट है. तो इसके कंपेयर करो बेटा. 2003 4 में कितने थे? नियर बाय 100 ओनली. इज इट इजी और नॉट? यस, वेरी इजी. दिस आर द बार ग्राफ. इसे खड़ी लाइन से दिखाते हैं और दो खड़ी लाइन के बीच में गैप इक्वल होना चाहिए. यस, गुड, वेरी गुड. Double bar graph. Here students, you are seeing this one. Here revision is going on. Marks obtained by a student. Maths, science, social science, science, English and Hindi. 2005-6 में कितने थे वो व्हाइट कलर से दिखाया है. 2006-7 में वो ग्रे कलर से दिखाया है. आपको पता चल गया कि मैथ्स में है वो इम्प्रूवमेंट है, सोशल साइंस में भी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा बढ़ा है नेक्स्ट ईयर में. साइंस में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बट इंग्लिश में है थोड़ा डाउन हो गया नेक्स्ट ईयर में, कम मिला. हिंदी में जो पहले मिला था वो सेम मार्क मिले हैं, नियर बाय 60 मार्क मिले, तो 60 मार्क के बराबर है. तो आपको ग्राफ से पता चल जाए कि उसको कितना मार्क मिला है रिप्रेजेंट. यस, यू आर राइट माय डियर स्टूडेंट. यस, क्रिकेट मैच यू आर सीइंग दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. यस,
when both teams are playing, they are showing these types of graphs. Good, but they are using the different line graphs also. Very good students, you are very clever, you are going very fast. Here you can try these types of graphs. Represent yourself, month of the name, January, February, January, no, July, August, September, October, November, December, number of watches sold are given 1000, 1500, 1500, 2000, 2500 and 1500. Children who prefer walking, cycling, स्कूल है, स्कूल बी, स्कूल सी, 3 स्टूडेंट के आपने पूछे, कितने स्टूडेंट है आप देख सकते हैं। प्रीपेयर में 8 टॉप क्रिकेटर्स कौन है वो भी आपके सामने है बेटा, आप बना सकते हैं आराम से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और मेन टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इंट्रोडक्शन गॉट ओवर। स्टूडेंट, यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, आगे पीछे होता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लाइन में अच्छी तरह से प्रिपेयर करके देना पड़ता है। उसको ये होता है रो डेटा, कहीं से भी आ सकता है, ऐसे 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 अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे और हमारा जो चाहिए वो जो आंसर से वो बना सकते हैं। तो हियर आई एम हैविंग ए टैली टेबल। सब स्टूडेंट्स मार्क्स आर हियर, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश में कौन कौन ने लिया, कैसे कैसे लिया, तो उसका आपके पास टेबल बना के दिया बेटा, बराबर है। तो आपको उसको कैसे कैसे कितने स्टूडेंट ने कैसे लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कितने हुए बेटा 7, मैथमेटिक्स वाले कितने हुए 5, साइंस वाले कितने हुए 6 और इंग्लिश वाले 4। तो बेटा ये है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई वांट टू रिवाइज योर लास्ट ईयर टॉपिक। 1 2 3 4 ऐसे लगाते हैं, जब 5 आता है तब उसको क्रॉस लाइन बनाते हैं, 6 आता है उसके बाजू में लगाते हैं, बराबर बेटा। आपको याद आ गया, 4 तक स्टेट, 5वां क्रॉस, 6 वाला क्रॉस, 7 आएगा तो और एक लाइन लगाएंगे ऐसे। ओके, अंडरस्टूड, वेरी नाइस, वेरी फास्ट। तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल और टैली टेबल्स। फ्रीक्वेंसी गिव्स अस द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स, जो भी एंट्री कितनी बार आई वो सबको पता चल जाता है और हम क्रॉस भी कर सकते हैं उसको। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसको बोलते हैं, टैली मार्क्स टेबल भी उसको बोलते हैं। आपको बनाना वेरी इजी है। नंबर ऑफ टाइम्स एंट्री अकर्स, ग्रुपिंग ऑफ डेटा बेटा, हियर आर द सम द डेटा रीडिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शोड द अकरेंस ऑफ ईच ऑफ द एंट्रीज several times. For example, art is likely by 7 students, mathematics is likely by 5 students, and so on. Table 5.1. This information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes however we have to deal with a large data. आपको तो इतने थोड़े से डेटा था, 20-25 स्टूडेंट के थे, भाई मोर देन है तो 60 स्टूडेंट का मार्क्स दिया बेटा इधर, आउट ऑफ 50 मार्क्स में से 60 स्टूडेंट का मार्क दिया बेटा, तो उसका हमको बनाने का है टेबल। क्या करेंगे, और सब आगे पीछे एक एक को करके पूछते हैं। 1 नंबर को मिला है 21, 2 को मिला 10, 3 को मिला है 30, 4 को मिला है 22, कुछ आगे पीछे चलता ही नहीं है। तो हमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसका रेंज बनाना पड़ेगा। 0 to 10 कितने को मिला, 10 to 20 कितने को मिला, 20 to 30 किसको मिला, एक टेबल बना देंगे बेटा, बराबर है। तो अच्छी तरह से हम बना सकेंगे उसको, कितना कैसे ग्रुप बनाएंगे, सबका ग्रुप बनाना पड़ेगा बेटा। यस, यू आर राइट माय। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 स्टूडेंट इधर आ जाएंगे, ग्रुप्स में रहेंगे। टैली मार्क्स कितने हैं, 0 to 10 मार्क्स वाले कितने, 2 ही स्टूडेंट है। 10 to 20 मार्क्स वाले कितने बेटा, यस 10 स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, टोटल कितने हो गए बेटा, 60 स्टूडेंट बन जाएंगे। टैली मार्क्स देख लो आराम से कैसे बनाने का है, वो ग्रुप में बनाया है बेटा आपने, तो देख लो अपने इधर कहीं से भी 50 मार्क्स किसी को मिला है, कोई नहीं है 50 मार्क वाला बेटा, एक है बंदा। तो 1 मार्क बात समझा दो बेटा, इधर थोड़ा गड़बड़ है, इधर 49 तक आना चाहिए। 49 to 50 लास्ट वाला है, 1 मार्क है, 50 वाला एक ही है, इसके लिए इसको 49 to 50। एक्चुअली 1 तो लेना 1 to 10, 11 to
20, 21 टू ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। कोई बात नहीं, हमने बना दिया, चलेगा आपको समझाने के लिए। Look at here. Data represented in this manner is said to grouped and distinguished obtained. Distributions obtained is called a group frequency distribution. Most of the students are lying between 20 to 30 or 20 to 40, 21 and 40. Or 8 students have scored more than 40 marks out of 50. Only one student got a 50 marks. आपको बोलते हैं उसको क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, उसको बोलते हैं बेटा क्लास इंटरवल। आपको उसको पता चल जाएगा किसको कितना स्टूडेंट मिला है। उसको बोलते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जैसे 10 to 20 है, उसमें 10 है वो लोअर लिमिट है, 20 है अपर लिमिट है। ये दो वर्ड याद रखने का बेटा, आपका कभी कभी याद आएगा, अगले स्टैंडर्ड में भी यूजफुल है। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। और वी कैन से विड्थ and size. The distance between the upper limit minus lower limit is called the range or size or width. Students, here distribution daily income of 550 works of a factory are given, जिसमें आपको अलग अलग रुपीस दिए हैं। इसको कितना मिलता है, सभी 550 वर्कर्स है, आप उसके में से पता कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं आराम से। बार्स विथ द डिफरेंस, let us again consider the group frequency distributions of the mark obtained by 60 students in mathematics. फिर से आपको वही टेबल का यूज करके बनाने का बेटा। This is the displayed graphically as in the adjoining graph 5.1. 10 to 20, 10, 20, 30, 40, 60. You can make it and show number of students are there. 10 marks वाले 2 students है, 10 to 20 वाले 10 है, 20 to 30 वाले 21 है, 30 to 40 वाले 19 है, 40 to 49, 50 वाले 7 और 50 वाले है 1। तो 60 स्टूडेंट का आपको ग्राफ बन गया, बार ग्राफ। यस स्टूडेंट, इजी? विल यू मेक इट द यूज ऑफ द ग्राफ? यस, गुड। हाइट, हाइट इज शोइंग अस अ फ्रीक्वेंसी, जितना बड़ा है उसका आपको पता चलेगा। हियर एज ऑफ द 25 टीचर्स ऑफ ए स्कूल, bars of equal width with no gaps in between. Heights of bar gives the number of data items in a particular group and is the frequency. Number of teachers कितने हैं, उसका height कितना है। Here I want to show you one thing students. See, some symbol is here. Yes, zigzag, which is showing directly gap. See, the gap is here 25, 30, 35, 40, 45, 50. हर एक गैप 5 का है, तो डायरेक्ट 20 कैसे आ गया? एक्चुअली इधर 0 है बेटा, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, y axis is correct, but x axis 0 to 20, you are not allowed. For showing 0 to 20, you have to use this zigzag. Yes, 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 zigzag is very important. I will show you in our exercise also. Good. Here teachers of heights of a school given to 20 to 25 is a 4 teachers, 5 teachers, 6 teachers, 3, 2 and 5 teachers. Good. One more graph is here. You can get this histograph. It is called the histograph. See, 0 to 125 directly taken, then after 5, 5 gap. Because otherwise 125 is far away. You have to leave it blank. Good. Exercise 5.1, very helpful this data. Questions are there. You can try to solve. Look at here now, new topic 5.4, circle graph or a pie chart. We already discussed these things in our 7th standard. Once again revise very fast. कोई स्टूडेंट है, उसका 24 आवर्स का डिटेल इधर दिया है। 24 होता है कि नहीं, पहले काउंट कर लो बेटा। 10, 16, 16, 24 हो गया बेटा। 8 घंटा स्लीपिंग करता है, 6 घंटा स्कूल जाता है, 3 घंटा प्लेइंग करता है, 3 घंटा कुछ और काम करता है और 4 घंटा होमवर्क करता है।
उसको एक सर्कल में दिखा दिया है। टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन ए टाउन, 50 to 60 ईयर के हाफ ऑफ द पीपल है। 0 to 14 वाले है 30,000 है, वो 50,000 है, 30,000 है, और 20,000 है बेटा 60 ईयर एंड अबाउट सीनियर सिटीजन्स। ग्राफ में आप ऐसे दिखा सकते हैं। सर्कल ग्राफ्स कॉल्ड ए relationship between a wall and its parts. Here the wall circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to the activity of information it represents. Number of sleeping hours divided by wall day. 8 hours divided by 24 hours. 1/3. Third part it is taken. दिन का तीसरा भाग वो सोने में लेता है। स्कूल में कितना घंटा करता है बेटा? 1/4, चौथा भाग, दिन का चौथा भाग वो स्कूल में स्पेंड करता है। तब ऐसे अपनी सबसे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एंड टोटल वॉल जो पूरा है उसका दे देने का है। जैसे उसका दिया था 50,000, 30,000, 20,000, टोटल 1 लाख हो गया बेटा। इसको बोलेंगे हम पाई चार्ट। सर्कल ग्राफ को क्या बोलेंगे बेटा? पाई चार्ट, PIE, पाई चार्ट। See here given some more pie charts. Example, girls, boys का ट्रांसपोर्ट को स्कूल कैसे करते हैं। कोई स्कूल चल के आता है, बस से आता है, साइकिल पे आता है। लव एंड हेल्थ, मैथमेटिक्स होता है कि नहीं होता है? पसंद है नहीं है? आप बोलेंगे इतने लिखते हैं इसमें, 15% हेट करते हैं, तो लव कितना करते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स? ईयर इसमें दिया है चार्ट में, 15 है, वो हेट करते हैं 15%, तो लाइक कितने करते हैं बेटा? यस, 85%। गुड आंसर। ड्रॉइंग ए पाई चार्ट कैसे करते हैं बेटा? वेरी इजी है। चॉकलेट, वेनिला, अदर फ्लेवर। आइसक्रीम खाता है बेटा? यस, तो 50% को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, 25 को वेनिला है, 25 को अदर है, कोई भी है। पहले तो हमको मालूम है सर्कल का कितना डिग्री होता है बेटा? 360। परफेक्ट। तो फाइंड आउट 360 है, 50 देते हैं, टोटल कितना है? 100 है। 50 को 100 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 1/2। 1/2 को मल्टीप्लाई करो 360 से। पहले तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, बाद में उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपको मिलेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। और पाई में स्ट्रेट लाइन आ गया तो क्या मतलब मिल गया बेटा आपको? हाफ ऑफ द पार्ट। यस। नेक्स्ट 25%, इट्स 1/4। 1/4 मीन्स यस, मल्टीप्लाई बाय 360, 90 डिग्री यू कैन गेट इट। 90 डिग्री फॉर वेनिला एंड 90 डिग्री फॉर अदर्स। सो आप इसे बना सकते हैं पाई चार्ट। देखो इधर बन गया। इजी और हार्ड? See, this chapter is very easy. Not a single mark you can lose. All students are getting perfect 100% marks from this chapter. किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल 1 देखते बेटा। Adjoining pie chart 5.7 gives the expenditures in percentage of various items and savings of a family during a month. 3 क्वेश्चन दिए बेटा ग्राफ के हिसाब सबको बोलने के। सबसे पहले काउंट करो। एजुकेशन में 15% चलता है, फूड में 25 है, क्लोथ्स में 10 है, सेविंग में 15 है, अदर्स में 20 है, ट्रांसपोर्ट में 5 है और हाउस में 10 है। टोटल मिला के करो तो कितना? 100 होना चाहिए। देख तो 100 होता है कि नहीं होता है? 20, 50, 50, 60, 65 ने 15 होते જાય છે। काय વાંધો નહીં, જે काय હોય परसेंटेज में गड़बड़ હશે જોઈ લેશું। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, पता चल जाता है किसमें सबसे ज्यादा है? फूड में है। एक्सपेंडिचर विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। यस, इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3,000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लॉथ? सेविंग्स 3,000 है, तो क्लॉथ में कितना रहेगा बेटा? क्लॉथ वाला किधर गया? क्लॉथ में 10% है, तो फाइंड आउट करना पड़ेगा।
वो 15% है तो ये 10% फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2000 जैसा आएगा। सॉल्यूशन करता है। एक्सपेंडिचर मेड इन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चाइल्ड इज द सेम, दैट मींस 50% इज द सेविंग्स ऑफ द फैमिली। सेविंग्स के जितना है उतना ही इसका एजुकेशन में डालते हैं बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। 15 के सामने 15 आ गया। तीसरा वाला देखते हैं बेटा। 50% ऑफ द 3000, तो 50% मतलब मल्टीप्लाई, यस, सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 15, क्योंकि 10% लेने का है, रिप्रेजेंट 10% है इसके लिए, तो आ गया 2000। मैंने बता दिया था ऐसे 2000 डायरेक्टली। देखो इधर देखो सेकंड क्वेश्चन। ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीस ऑफ ए डिफरेंट टाइम्स आइटम्स ऑफ द बेकर्स शॉप्स आर बिलो। ऑर्डिनरी ब्रेड का है 320 का है, फूड ब्रेड का है इतना 80 रुपीज है, केक पेस्ट्रीज 160 की सेल हुई, बिस्किट 120 का, अदर्स 40 का, टोटल 720 हो गया। ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ दिस डेटा। वेरी सिंपल है बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो टेबल बना दो। वी फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर। हियर सेंट्रल एंगल के बारे में बताया था, 360 से मल्टीप्लाई करना है। 720 टोटल रुपीस है, बराबर है। तो ऑर्डिनरी ब्रेड है 320, 320 डिवाइड बाय 720, आपको मिल गया 4/9। हाउ 4/9 केम? यस, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। 320 डिवाइड बाय 720, सबसे पहले तो 0 0 गया, डोंट कट 2 2 बेटा, आराम से करो। अभी देखो 32 और 72 दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। कौन से टेबल में आ रहा है? 8 के टेबल में आ रहा है। यस, 8 4 जा एंड 9 8 जा, तो आपको आ गया 4/9 मिल गया बेटा। इजी, इजी और नॉट बेटा? यस, गुड, वेरी नाइस। तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। उसको क्या करना है? 4/9 को 360 से मल्टीप्लाई करो। 360 से मल्टीप्लाई किया बेटा, फिर से मैं समझाऊं इधर। 4/9 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री which gives me a 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 4 4 जा 16 and 1 0 more, so 160 डिग्री मुझे मिल गया बेटा। गुड, तो आपको पता चल गया ये सबसे ज्यादा है। 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री एंड 20 डिग्री। आप पैर ऑफ कंपास से पहले सर्कल बनाओ और बाद में उसको एक लाइन बना के 160 का बना दो। पहला वाला है ब्रेड वाला, ऑर्डिनरी का बना दो। उसके बाद 60 डिग्री का बनाओ, 80 डिग्री का बनाओ, आपका पाई चार्ट रेडी हो जाएगा। रफ बनाओगे तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। क्लियर बेटा? वेरी गुड। 5.2 exercise is with you. You can draw it very easily. Now chance and probability, last topic of this our lesson. Chance and probability. We learn about the probability in 7th standard. बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, yes, yes. During rainy season, you carry a raincoat every day and it does not rain for many times. तो चांस कम हुआ है, और जब आप भूल जाते हैं तभी बारिश आती है। ओके, कोई बात नहीं। अब जानबूझ के जैसे खेलते आप डाइस, बॉलिंग करते हैं, विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा। टॉस करते हैं आप, हेड आएगा नहीं आएगा। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कितनी बार आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी है। गेटिंग ए रिजल्ट बोलते बेटा उसका, गेटिंग ए रिजल्ट। जैसे कि आपने बता दिया, आपको कॉइन करते हैं टॉस, हर बार हेड मिलने का कितना चांसेस है? मिलेगा, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, टेल भी आ सकता है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको, आउटकम बोलते हैं। कितनी बार आता है आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है, बराबर है, आउटकम्स। सो ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर, एक ही किक में हो जाएगा, एक ही सेल्फ में हो जाएगा। तो ये सब होगी प्रोबेबिलिटी है। डाई, इसमें DI, डाई मीन्स मरना नहीं, डाइस खेलते हैं आपको, बराबर है। गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और आप वो जो व्हील में घुमाते फेंकते हैं एरो, वो वाला। कोई पोर्ट में आप चिट्ठी डाल दो, रेड ब्लू ग्रीन येलो कलर की, एक निकालो सेम कलर निकलेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी कम है, बराबर बेटा। इक्वली एंड लाइकली आउटकम कितना है वो आप बता सकते हैं इसमें से। नंबर ऑफ हेड कितनी बार आता है, नंबर ऑफ टॉस कितनी बार आता है आप बता सकते हैं। 50 कितनी बार आया, ए कॉइन टॉस सेवरल टाइम्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड और टॉयल इज नॉट हेड। तो आप लिख सकते हैं इधर कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, और उसको दिखा दो इधर बेटा। हाँ, वेरी गुड। नाउ लुक एट हियर, डाई और कॉइन। आई कुड लैंड लाइक दिस अगेंस्ट दिस वेल। इसी तरह से डाइस करेगा तो चलेगा नहीं, ऐसे कॉइन खड़ा रहेगा तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा
नो हेड नो टेल, बराबर है। तो आपको उसको पहले अच्छी तरह से लिंकिंग करना पड़ेगा। यस, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कम्स वंस और 50 टाइम्स, हेड और टेल्स 50 टाइम्स, दैट इज 1/2। डाइस में कितनी बार होगा बेटा? एक ही नंबर एक बार मिलेगा, तो कितने टोटल नंबर है? 6। टोटल पॉसिबिलिटी 6, आउटकम 1। आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज, आउटकम्स। क्लियर? आउटकम्स एज इवेंट्स। इवेंट का मतलब है बेटा ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। तो जैसे हमको 1 2 3 4 5 6 में कोई एक नंबर मिलता है तो उसको एक इवेंट बोलते हैं बेटा, बराबर है। एग्जांपल नंबर 3 देखो, ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स, द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर। इसका साइज सेम है सभी बॉल का। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल? कैसे पता करेंगे? यस, सबसे पहले तो 4 + 2 6 हो गया बेटा। टोटल आउटकम कितने हैं? 6 है। इसमें से रेड के कितने हैं? 4/6। येलो के कितने हैं? 2/6। उसकी पॉसिबिलिटी 2/3 है रेड की, और येलो की 1/3 है। ये हो गया अपना पॉसिबिलिटीज। क्लियर? चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। रियल लाइफ में क्या होता है? जस्ट नाउ भी हमने बताया था बेटा। क्या बताया था बेटा? हाँ, रेन होगा या नहीं होगा। रेनकोट लेके जाते हैं, मिलता है कि नहीं मिलता है। 10 बार लेके गए, डज नॉट रेन 9 टाइम, एक ही बार मिला। तो क्या करेंगे अब बेटा? रेन एक बार आया तो 1/10, रेन नहीं आया तो 9/10। दोनों को प्लस करो तो 1 आंसर आएगा। यस, 5.3। Yes, one more point I want to clarify. Meteorological department predicts weather by observing trends from the data over many years in the past. जैसे हवामान वाले बोलते हैं बेटा, फोरकास्ट, अगले दिन रेन होगा या बारिश होगी या धूप निकलेगा, वो पूरा डिटेल चेक करते हैं, बाद में बताते हैं। बराबर है बेटा? गुड। Let's what we have discussed. Data mostly available to us in an unorganized form is called a raw data. In order to draw meaningful interface from any data, we need to organize the data systematically. Frequency किसको बोलते हैं बेटा? A frequency gives the number of times that a particular entry occurs. Raw data can be grouped and presented systematically through grouped frequency distributions. Group data can be presented using histogram. Histogram is a type of bar graph where the class intervals are shown on the horizontal axis and the heights of the bar shown the frequency of the class interval. Also, there is no gap between the bars as there is no gap between the class interval. Data can also presented using circle graph or a pie chart. A circle graph shows the relationships between a wall and its part. 7 number topic. There are certain experiments whose outcomes have an equal chance of occurs. A random experiment is one whose outcome cannot be predicted exactly in advance. Outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chance of occurring. Probability of an event किसको बोलते हैं बेटा? Number of outcomes that make an event divided by total number of outcomes of the experiment, which the outcomes are equally likely. One or more outcomes of an experiment make an event, or chance and probability are related to real life. Here we end up our introductions of lesson number 5. We will meet in our next session. Till there, bye bye. Take care. Be safe. Stay at home.